Good morning, students. Today, we are going to start another lecture of investment analysis. In last lecture, we discussed the topic of money markets, and today's lecture, we are going to discuss about capital markets. As you have already studied, and in your last semesters, you have studied about capital markets in many times. How capital market returns are dealt with, how risk and return are done. So today, now we'll have a look on capital markets on in the view of investment analysis. So I, Ritu Singh, is going to start today's lecture for investment analysis on the topic of capital markets. So what are capital markets? We are well aware capital market is a place where long-term securities are dealt with. Okay, so in capital market are the venues where saving and investments are channeled between the suppliers who have capital and those who are in need of capital. And capital market is a long-term market. That means whatever you are going to invest here is going to be invested for a long period of time. That is for more than 1 year and in most of the cases for more than 5 years. The entities that have capital include retail and institutional investors, while those who seek capital are business, government, and people. Capital markets are comprised of primary and secondary markets. So, we have already studied that capital market is divided into two parts. So, in when we were studying in previous chapters and in previous semesters, we have studied that there are two types of market: financial markets, which are mainly dealt with capital and money market. Money market is a short-term market. Capital market is a long-term market. And capital market is further divided into primary and secondary market. Primary market deals with the IPOs, that means the newly introduced securities in the stock market, and secondary market deals with the bonds and debentures and stocks which are already circulating in the stock market and they have completed their cycle of at least one financial year. तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिन्हें कैपिटल की ज़रूरत है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो वहाँ से पैसा उठा सकते हैं. कैपिटल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज को डील किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में उन सिक्योरिटीज को डील किया जाता है जो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और 1 साल की फाइनेंशियल साइकिल पूरी कर चुकी है. लोग उन्हें परचेज कर रहे हैं एंड सेल भी कर रहे हैं. कैपिटल मार्केट हेल्प करता है ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में. अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस लार्ज कैपिटल ढूंढ रहा है, लार्ज कैपिटल की नीड में है, तो उस केस में उसे कैपिटल मार्केट का हेल्प लेनी पड़ती है. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट? First of all, it is referred to a place where savings and investments are moved between suppliers of capital and those who are in need of capital. Also, capital market consists of primary market where new securities are issued and sold, and secondary market where already issued securities are traded between investors. And the most common form of capital markets are the stock market and the bond market. आपने सेंसेक्स के बारे में सुना है, आपने निफ्टी के बारे में सुना है, आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है. So these are all the example of capital market जहाँ पे इन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, इन्हें परचेज और सेल किया जाता है. तो 3 बहुत ज़रूरी पॉइंट है. अगर आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर आता है तो आप कैपिटल मार्केट की ये 3 पॉइंट ज़रूर लिखेंगे, जिसमें कैपिटल मार्केट एक जगह है जो सप्लायर्स यानी कि सेविंग्स करने वाले और इन्वेस्टमेंट को ढूंढने वाले लोगों के बीच में एक लिंक है. और कैपिटल मार्केट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में हम न्यूली इशूड सिक्योरिटीज से डील करते हैं और सेकेंडरी मार्केट्स में हम ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज से डील करते हैं. So now how to understand capital markets? The term, the term capital market is broadly defined as a place where various entities trade different financial instruments. These venues may include stock exchange, bond markets, currency and foreign exchange markets. तो कैपिटल मार्केट के पार्ट में हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को भी ला सकते हैं, जहाँ पे हम फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे हम करेंसी पेयर्स को एक्सचेंज करते हैं.
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम अगले आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक सब्जेक्ट भी पूरा पूरा एक सब्जेक्ट भी आगे पढ़ने को मिलेगा। So, what is capital market is comprised of? It is comprised of supplier and users of fund. Money. What is money? Is the blood of any business. Money is needed to run every business, to create profit in a business. The capital market एक ऐसी जगह है जो suppliers और users of money के बीच का एक middle point है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। सप्लायर्स वो हाउस होल्ड है, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पेंशन फंड्स चला रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हैं, एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉरपोरेशंस पे वर्क कर रहे हैं। इवन बैंक्स भी एक तरीके से कैपिटल मार्केट का पार्ट है, जो कि कैपिटल मार्केट में फंड सप्लाई करते हैं। और इनके यूजर ऑफ फंड्स कौन से हैं? वो है हमारी कंपनीज, बिजनेस हाउसेज जिन्हें लोन चाहिए होता है, हमारी गवर्नमेंट यूजर है कैपिटल मार्केट की, जहाँ पे वो लोन्स लेती है, इन्वेस्टमेंट पैसा लेती है, एक्सपेंसेस लेती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए और इकोनॉमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो कैपिटल मार्केट इज यूज टू सेल एंड purchase financial products such as debt and equities. Equities are the stocks, equity are the commodities which have ownership in a company, and debt securities are the commodities which is issued by a company to the debt holder and bond holder, and they are able to give interest to the bond holder. कैपिटल मार्केट में जो दो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी और डेट है। इक्विटी जनरली शेयर्स होते हैं कंपनी के, और इक्विटीज में परचेज और सेल करने में, उसमें ट्रेडिंग करने में पर्सन कंपनी का ओनरशिप मिल जाती है। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब एक स्टॉक्स में और शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसे, तो वो जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करता है उस कंपनी में उसे एक ओनरशिप मिलती है। फिर आपके आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरीके के, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, और बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं, जो डिबेंचर्स परचेज करते हैं, उनको उन बॉन्ड्स पे एक स्टिपुलेटेड अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, पर उन्हें कंपनी में ओनरशिप नहीं मिलती है। Then these markets are divided into two parts, primary and secondary. जहाँ प्राइमरी में हम नई सिक्योरिटीज को लेके आते हैं, यानी कि हम आईपीओस को लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को लेके आते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, जो एक फाइनेंशियल साइकिल पूरी कर चुकी हैं, उनकी जो ट्रेडिंग होती है, उसमें उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होते हैं। कैपिटल मार्केट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो मनी है वो ज़्यादा इजीली मूव करता है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में ह्यूज प्रॉफिट्स भी देता है। अब आपके एग्जाम में प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके एग्जाम में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स के बीच का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप वो डिफरेंशिएशन, वो आंसर टैबुलेटेड फॉर्म में लिखें। टैबुलेटेड फॉर्म में आंसर लिखने से फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर को आपका आंसर ईजिली समझ में आएगा और वो आपको ज़्यादा नंबर दे पाएगा। सो यहाँ पे जब हम प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये दोनों ही, हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंसेस नहीं डिस्कस करेंगे, इनके सिमिलैरिटीज भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। तो अब आज के करेंट टाइम में कैपिटल मार्केट डिजिटाइज हो चुका है, इट हैज बिकम अ कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। सो बोथ द methods, both the plans are working and on digital platforms. Digital platforms में होने वाली transactions फेयर होती हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रहती हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपको इसमें होने वाली डीलिंग साफ साफ नजर आती है। अब जो प्राइमरी मार्केट्स होते हैं, दे आर ओपन टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हु बाय सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। प्राइमरी मार्केट में आपके आईपीओज आते हैं ज़्यादातर, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू, यानी कि कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर मार्केट्स में लेके आती है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट्स में डील करते हैं, और यहाँ पे ये स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए होती है।
हम ये कह सकते हैं ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए होती है जिनके पास सरप्लस अमाउंट ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं जो कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं. That means they have more wealth to dispense on stock market. Because प्राइमरी मार्केट में जब सिक्योरिटीज ऑफर होती हैं, जब आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है या जो शेयर्स का बायर है उसको एक या दो शेयर्स खरीदने की छूट नहीं होती है. यहाँ पे जब भी आपका आईपीओ आता है, अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर चेक करेंगे तो उसमें अक्सर अगर किसी कंपनी का आईपीओ आता है, उसके शेयर्स आते हैं मार्केट में, तो एक प्रॉपर ऐड देते हैं जिसमें वहाँ उसका उस शेयर का फेस वैल्यू बताते हैं, उस शेयर की मिनिमम परचेजिंग पॉइंट बताते हैं कि आपको मिनिमम इतने शेयर्स खरीदने ही हैं, इतनी क्वांटिटी के शेयर्स खरीदने ही हैं. तो इन दैट कंडीशन ऐसे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, ऐसे इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है जो ज़्यादा मनी डिस्पेंस कर सकते हैं, जो एक बार में किसी कंपनी के 500,000 शेयर्स खरीद सकते हैं. So what happens in primary market and what happens in IPO, that when a company goes to public, it sells its stock and bonds to large scale and institutional investors such as hedge funds and mutual funds. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो यहाँ पे आके कई सारे लोगों के फंड पूल को एक साथ कलेक्ट करके लाते हैं और आईपीओ से परचेजिंग करते हैं. म्यूचुअल फंड के चैप्टर में भी हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो हमारे एसेट मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो कई सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को पूल करते हैं, एक स्टिपुलेटेड अमाउंट बनाते हैं और फिर परचेज करते हैं. इस केस में अगर किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और हमारे फंड मैनेजर को, म्यूचुअल फंड मैनेजर को लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये अपने पूल ऑफ फंड्स को उस पर स्पेंड करता है. उसकी बजाय जो सेकेंडरी मार्केट है ये इंक्लूड करता है रेगुलेटरी बॉडीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को. यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये आपका यूएस के केस में है. अगर हम इंडिया की बात करें तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी यहाँ की सेकेंडरी मार्केट की डीलिंग्स को कंट्रोल करता है. यहाँ इन्वेस्टर्स के बीच में किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, कैसे बाइंग एंड परचेजिंग हो रही है, कहीं इन्वेस्टर्स आपस में इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे कंट्री में, इंडिया में, हम सेबी की हेल्प लेते हैं और सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. कोई भी कंपनी जो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है या उन्हें डिच कर रही है या फिर अपनी अकाउंट बुक्स को फज कर रही है, उस केस में उस कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, हैवी फाइन्स और पेनल्टी लग सकती हैं और जो कंपनी का ओनर है वो जेल भी जा सकता है. सो सेकेंडरी मार्केट एक कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यहाँ पे आके आपकी सिक्योरिटी एक साल का फाइनेंशियल साइकिल पूरी कर चुकी है. अब वो सिक्योरिटी इन कैश हो सकती है. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपकी सिक्योरिटी अच्छी है, एक साल से ज़्यादा मार्केट में है, अच्छे प्राइस पे है, लोग इसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. दैट मीन्स दिस सिक्योरिटी, दिस कंपनी विच इज सेलिंग दिस सिक्योरिटी इज ट्रस्टेबल. तो ये एक सर्टेन लिक्विडिटी क्रिएट करती है मार्केट में. तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस. कैपिटल मार्केट जो है एक कॉर्पोरेट फाइनेंस को जन्म देता है. यहाँ पे द कैपिटल मार्केट बिकम्स अ प्लेस वेयर इन्वेस्टमेंट फॉर इवन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आर अवेलेबल. और यहाँ पे जो कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर की हो, पावर सेक्टर की हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो, ये सब के सब आ जाते हैं कैपिटल मार्केट के पास अपने फंड्स को इशू कराने के. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टेबल कैपिटल इंक्लूड्स एक्सटर्नल फंड्स इंक्लूडेड इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन, कॉमन एंड प्रेफर्ड इक्विटी, पब्लिक बॉन्ड्स, प्राइवेट डेट are also used in return or invested calculation, capital calculation. So capital markets in corporate finance may also refer to equity funding excluding debt. तो कैपिटल मार्केट में कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग एक काफ़ी यूजफुल टूल हो जाता है. कैपिटल मार्केट में आप जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, वो या तो आपके ऑर्डिनरी शेयर से आएगी या फिर प्रेफरेंस शेयर से आएगी, पब्लिक बॉन्ड से आएगी या फिर डेट से आएगी.
तो कैपिटल मार्केट्स कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए, यानी कि एक बिजनेस एरिया में काम करने वाली कंपनीज के लिए एक अच्छी लो इंटरेस्ट वाली एंड यूजफुल कैपिटल जनरेट करती है. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कैपिटल मार्केट. So financial services or financial companies are involved in private rather than public markets as part of capital market. They include investment bank, private equity firms, and venture capital firms, in contrast to broker dealers and public exchanges. तो कैपिटल मार्केट जो है एक प्रॉफिट ओरिएंटेड प्लेस है, इसलिए प्रॉफिट ओरिएंटेड प्लेस होने की वजह से यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा हैं रादर देन पब्लिक प्लेयर्स. और इसमें ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंक की सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की सर्विसेज और वेंचर कैपिटल फर्म्स की सर्विसेज. वेंचर कैपिटल फर्म अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सो दैट दे कैन गेट अ होल्ड इन मार्केट. प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हेल्प करती हैं कि कहाँ पे कौन सी इक्विटी शेयर्स आपको खरीदने चाहिए. इन्वेस्टमेंट बैंक भी एक इसी तरीके का काम करती है. Then, if we talk about public market, then it is operated by a regulated exchange. Capital markets can refer to equity market in contrast to debt, bond and fixed income, money derivatives and commodity market. Mirroring the corporate finance concept, capital market can also mean equity as well as debt, fixed income market or bond. So in case of public markets, तो जो कैपिटल मार्केट हम इस पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर हमें प्राइवेट प्लेयर्स मिलेंगे बिकॉज कैपिटल मार्केट एक प्रॉफिट ओरिएंटेड प्लेस है. यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. पर फिर भी कुछ पब्लिक टर्म्स पे भी, पब्लिक मार्केट्स के लिए भी कैपिटल मार्केट वर्क करता है. और कैपिटल मार्केट में जो भी आपने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं उससे आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस पर गवर्नमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट भी अब लगने लगा है. डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट भी क्रिएट कर दिए गए हैं कि अगर आपको इतना फायदा हो रहा है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. तो वो पब्लिक मार्केट का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स लेने लगती है कैपिटल गेन्स पे, तो नाउ गवर्नमेंट हैज invested, government has made another source of income for themselves, which they will further use for the development of the economy. So this was all about the capital market. कैपिटल मार्केट का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया कि कैपिटल मार्केट क्या होता है. इसके की पॉइंट्स क्या है. की पॉइंट्स हमारे ये हैं कि ये सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को साथ में लेके आता है. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होते हैं. प्राइमरी मार्केट में हम न्यू सिक्योरिटीज सेल करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में हम ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज करते हैं. और कैपिटल मार्केट में एक स्टॉक मार्केट रहता है और एक बॉन्ड मार्केट रहता है. कैपिटल मार्केट के जो सप्लायर्स हैं वो हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसीज, बैंक्स और पेंशन फंड्स हो सकते हैं, या इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं. और जो कैपिटल मार्केट के जो रिसीवर्स हैं या जो बोरोवर्स हैं वो होती हैं कंपनीज, गवर्नमेंट एंड फैक्ट्रीज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. देन कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट आपका आईपीओ से डील करता है और सेकेंडरी मार्केट आपके सेबी के रेगुलेशन से डील करता है. एंड आपका जो कैपिटल मार्केट होता है वो जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस में डील करता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका कैपिटल मार्केट से एसोसिएटेड है. इसमें सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आपको प्रोवाइड कराते हैं. और कहीं कहीं भी पब्लिक मार्केट्स में भी इन्वेस्टेड है, जहाँ पे ये गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी फंड्स जनरेट करता है. अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट. इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है किसी भी फाइनेंस फैकल्टी का. या कह सकते हैं मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी फाइनेंस फैकल्टी का, और वो इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन समझते हैं. तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप यूनिट 1 की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट 1 जब प्रिपेयर करेंगे आप एग्जाम से पहले, तो आपको ये इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है. अगर आप रिटन पेपर्स दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस पे लॉन्ग आंसर लिखना पड़ सकता है.
तो जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे या आपके पास क्वेश्चन आता है कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप ये डिफरेंशिएशन टैबुलेटेड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि टैबुलेटेड फॉर्म में दिया गया डेटा, लिखा गया डेटा इजीली विजिबल होता है, एग्जामिनर को समझ में आता है, तो वो आपको अच्छे नंबर दे पाता है. So, what are the differences of capital and money market? Money market is defined as a dealing in debt of less than 1 year, primarily used by government and corporations to keep their cash flow steady and for investors to make modest profit. तो मनी मार्केट आपका 1 साल से कम समय के टाइम पीरियड के लिए जो भी कंटेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, उससे डील करता है. जबकि कैपिटल मार्केट इज डेडिकेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है. मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल को, कैश फ्लो को स्टेडी रखता है, एंड कैपिटल मार्केट कंपनी में आने वाली कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट कैपिटल को, नए प्रोजेक्ट्स में होने वाले हेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करता है. तो कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट्स एंड बॉन्ड मार्केट्स दोनों आते हैं. तो जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक खरीदता है, भले ही 3-4 दिन में 2-3 बार उनको ट्रेड करे, तो ये सारे पोर्शन, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारी ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल मार्केट का फॉर्म बनाती है. So, next point is that money market and capital market are not single institutions, but two broad components of global financing system. तो मनी मार्केट सिंगल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एक फाइनेंशियल सिस्टम के एक दो मेजर डिविजन्स हैं. मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डेट मिलता है, ये कांस्टेंट कैश फ्लो को गवर्नमेंट्स के बीच में, बैंक्स के बीच में डील करता है. कैपिटल मार्केट में बोथ स्टॉक यानी कि सिक्योरिटीज में, प्रेफरेंस शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में डीलिंग होती है, और बॉन्ड्स में यानी कि बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, आपके प्रीमियम पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीज़ें डील होती हैं. और ये जो सारे लॉन्ग टर्म असेट्स हैं वो आप तक कौन पहुंचाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहुंचाते हैं, प्रोफेशनल ब्रोकर्स पहुंचाते हैं, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पहुंचाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट टुगेदर एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा चंक बनाते हैं फाइनेंशियल मार्केट का. हम ये कह सकते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक ऐसी इंटिटी है फाइनेंशियल मार्केट की जिनके बिना, जो एक तरह का, जो एक फाइनेंशियल मार्केट में लाइफ ब्लड को मेंटेन करते हैं. इन दोनों का ही साथ साथ एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इन्वेस्टर को या किसी कंपनी को जिसको फंड की जरूरत है, उसे लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है और लार्ज स्केल फंड्स की जरूरत है, तो उस केस में उसके लिए कैपिटल मार्केट काम आता है. बट जब किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो के लिए पैसा चाहिए, तो तब उस केस में उसके लिए मनी मार्केट काम आता है. सो मनी मार्केट के थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. इट इज अ गुड प्लेस फॉर इंडिविजुअल, बैंक्स एंड अदर कंपनीज हु वांट टू पार्क कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, that is less than 1 year. It exists so business and government that need cash to operate to can get it quickly at reasonable cost, and so that business have more cash than they need to put it to use. तो मनी मार्केट इंडिविजुअल और बैंक और कंपनीज, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट्स के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पे वो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सेफ प्रॉफिट कमा सकता है. तो मनी मार्केट के की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि इट इज अ शॉर्ट टर्म लेंडिंग सिस्टम, व्हाइल कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व्हीकल. ओके, मनी मार्केट के जो रिस्क है वो लो है, जिसकी वजह से रिटर्न मॉडेस्ट है. कैपिटल मार्केट्स में रिस्क हाई है, रिटर्न भी उसकी वजह से फिर हाई हो जाता है. बट अगर अनफेवरेबल कंडीशंस अगर हुई तो आपका लॉस भी ज़्यादा हो जाता है. मनी मार्केट में जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके कोलेट्रल लोन्स, एक्सेप्टेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. और लॉन्ग टर्म मार्केट में आप जो यूज़ करते हैं वो आपके होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जब लिक्विडिटी के टर्म की बात करें तो मनी मार्केट आपके कैपिटल मार्केट से ज़्यादा लिक्विड है. अगर हम लिक्विडिटी बात करें, दोनों ही मार्केट कुछ हद तक कुछ कुछ लिक्विडिटी शो करते हैं, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो मनी मार्केट आपका ज़्यादा लिक्विड है इन कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट के टाइम पीरियड कम है. मनी मार्केट
का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 ईयर से लेस है और कैपिटल मार्केट का 1 ईयर से ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी मनी मार्केट में ज़्यादा अच्छा और बेटर की रोल प्ले करती है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मनी मार्केट ज़्यादा सेफ और एक्सेसिबल प्लेस लगती है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। इसमें R2R कांस्टेंट मॉनिटर होता है उनके प्राइसेस का। कैपिटल मार्केट्स में आपके कुछ प्राइसेस होते हैं, ओपनिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, हाईएस्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इन अ डे एंड द लोएस्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इन अ डे। जब भी कोई सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रही है तो ये चार प्राइसेस, जो चार पॉइंट्स मैंने भी बोले हैं, ये किसी भी सिक्योरिटी और बॉन्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है और वो उस कैपिटल मार्केट की कंडीशन को बताती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं, जो आपके स्टॉक्स और जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, वो रोज ओपन होते हैं और उनमें रेगुलर आवरली बेसिस पे उन पे ध्यान दिया जाता है, उनकी वैल्यूज को नोट किया जाता है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। इसमें मैंने चार वैल्यूज बोली थी। पहला आपका ओपनिंग प्राइस, दूसरा क्लोजिंग प्राइस, दूसरा हाईएस्ट प्राइस एंड नेक्स्ट इज लोएस्ट प्राइस। तो एक सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट के ओपन होने पे, जब कैपिटल मार्केट रोज सुबह ओपन होता है किसी भी कंट्री का, तो जो सिक्योरिटी है या कोई शेयर है, उसका उस दिन का ओपनिंग प्राइस क्या था, किस प्राइस में ओपन हुई थी। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे जब ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए तो उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, और उसका उस दिन का लोएस्ट प्राइस क्या था, और उसका हाईएस्ट प्राइस क्या था। अब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई शेयर है जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है कैपिटल मार्केट में, और एक इन्वेस्टर अपनी वेल्थ को कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो उस शेयर में ये चेक करता है, उसके रिकॉर्ड में ये चेक करता है कि जो ओपनिंग प्राइस है सिक्योरिटी का इन द मॉर्निंग ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज वो 30 रुपीज है। क्लोजिंग प्राइस शाम का उसका हो जाता है 35 रुपीज। उसका जो लोएस्ट प्राइस पूरे दिन का है वो हो जाता है उसका 29 रुपीज। ट्रेडिंग जो आपका सिक्योरिटी है वो सुबह जब ओपन हुई, जब मार्केट ओपन हुआ तो उसकी वैल्यू 30 रुपीज थी, बट बीच में वो वैल्यू गिर के 29 रुपीज हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे पूरे दिन में वो फिर से रिकवर करती है और हाईएस्ट पॉइंट जाती है 36 तक, बट मार्केट क्लोज होने तक वो फिर से वापस 35 पे आ जाती है। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस 30 है, क्लोजिंग प्राइस 35 है, हाईएस्ट प्राइस 36 है एंड लोएस्ट प्राइस 29 है। कई बार ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइसेस ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस से मैच भी कर सकते हैं। Not it won't change any rules of the stock exchange. So capital market is divided into primary and secondary. We have discussed so many times. So this was all about today's lecture. आज के लेक्चर में हमने कैपिटल मार्केट को स्टडी किया, उसको डिस्कस किया, एंड कैपिटल और मनी मार्केट के बीच के डिफरेंसेस को हमने पढ़ा। ये आपका यूनिट 1 चल रही है। यूनिट 1 के हिसाब से या यूनिट 1 के कंटेंट के हिसाब से आपका कैपिटल एंड मनी मार्केट का चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसको इम्पोर्टेंस अगर आप देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 50 to 60% दीजिएगा पढ़ते समय, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है इस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सब्जेक्ट का। तो इससे आपको वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। हालांकि इसके लॉन्ग आंसर्स में आने की कोई संभावना बहुत कम है। एंड ये जो चैप्टर है, ये जो पॉइंट्स है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के, ये आपको इजी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप इससे पहले भी कई बार फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो टुडे दिस लेक्चर वाज merely a revision for you. I hope you understood it all and it has freshed your memory or and freshed your knowledge and information about capital and money markets. So if you have any further questions, अगर आपको कोई भी question है, कोई भी query है, आप मुझसे question पूछ सकते हैं. You can put up your questions on Google Classroom. You can put up your questions on my mail ID, and I will answer them as soon as possible. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि आप बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, आपको
किसी भी फाइनेंशियल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो या बिजनेस स्टैंडर्ड हो। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, उस पर उनकी न्यूज़ पे ध्यान देंगे, तो आपको कैपिटल मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी बनी रहेगी, और हो सकता है आगे जाके आपको इतनी सफिशिएंट नॉलेज हो जाए कि आप खुद से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। So, this was all for today's lecture. Thank you so much, students, listening patiently. So, next topic for discussion for the lecture will be bond market. अब फाइनेंशियल मार्केट्स, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हमारे इंडिया के, उसमें आपने मनी मार्केट पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बॉन्ड मार्केट, जहाँ पे बॉन्ड्स, डेट, सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। तो सी यू सून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।